ਤਾਂ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਭਗ 1500 ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 1500 ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਿਸਤਾ ਨਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ। ਲਗਭਗ 1500 ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰੀ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1500 ਸੈਲਾਨੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 8 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਸਤਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਗਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਸਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 2 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ 8 ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਸਦਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 1500 ਸੈਲਾਨੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਿਸਤਾ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਫੀ 1500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤਿਸਤਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ 8 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤਿਸਤਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 1500 ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ सिक्किम दे विच फंसे हुए ने। अभी का रोड का अभी ये ब्रिज का कंडीशन ऐसा है कि अभी हम लोग कुछ बता नहीं पाएगा क्योंकि जब तक ये पानी का लेवल डाउन नहीं होगा तब तक हम लोग बता नहीं सकता है, क्योंकि नीचे से अभी जो अबॉटमेंट है वो नीचे से पूरा पानी के चलते पूरा उसको अबॉटमेंट को डैमेज हुआ है। इसके चलते अभी तो हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये हमारा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का एक ही लाइफ लाइन है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट मतलब हमारा लाचन लाचुंग चुंगथंग और ये जोंगू का जितना भी इसी रास्ते से चल रहा था, क्योंकि पहला तो हमारा संकलंग में भी था। वो संकलंग का भी ब्रिज टूटने के चलते अभी हमारा पास एक ही ऑप्शन है, एक ही ये रास्ता है, एक ही ब्रिज है। अभी ये भी टूट जाएगा तो हमारे लिए कोई डिफेंस के लिए भी तकलीफ की बात है, क्योंकि डिफेंस भी चल नहीं पा रहा है। अभी ये भी टूट जाने के चाइना बॉर्डर तक चाइना का बॉर्डर जाने रास्ता यही एक रास्ता है, अभी अल्टरनेटिव रास्ता भी नहीं है। इसलिए अभी हम लोग जितना सके हमें अभी सुबह हम लोग आके यहाँ पर कमांडेंट साहब भी था, उनको भी हम लोग ने बोला इसको जितना सके आप लोग रिस्टोर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हमारा ऊपर लाचन लाचुंग में हमारा टूरिस्ट भी फंसा हुआ है और ये एक ही रास्ता है, ये एक ही ब्रिज है जिससे हम लोग लाचन लाचुंग तक कनेक्ट करता है, जोंगू से लेकर लाचन लाचुंग तक कनेक्ट करता है, बॉर्डर एरिया तक कनेक्ट करता है। इसीलिए हम लोग सुबह आके उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि जितना सके इसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने के लिए हम लोग ने बोला। पब्लिक इफेक्ट होगा इधर अभी मान लीजिए आप लोग आर्मी से जोड़कर सब करके तो कम से कम हमारा 50-60 हज़ार तो होंगी, 50-60 हज़ार तो होंगे।
अभी टूरिस्ट फंसे हैं, उन लोगों को तो आना यही रोड से होगा। ये एक ही यही रास्ता से आना होगा टूरिस्ट लोगों को। वो भी हमारा टूरिस्ट लोग फंसा हुआ है, उनको भी हम लोग हमारा जितने भी लाचन लाचुंग का हमारा पिपन साहब लोग है और चुंगथांग का जितना भी जिला पंचायत है और गांव का जितना भी लोग है और ट्राइबल्स का है, वो लोग पार्टी का कार्यकर्ता है, वो लोग सपोर्ट कर रहा है। उनको जितना सके उन लोगों को ट्रांसपोर्ट करके निकालना है, क्योंकि उन लोगों को वहाँ ज़्यादा रखने से भी उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग कल रात भी मेरा यहाँ पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का हमारा इंचार्ज है, इन्होंने भी कल रात भी हमारा टूरिस्ट को रिस्टोर वहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर नया बाजार में उन लोगों को भी, क्योंकि अभी पूरा रास्ते के चलते एक ही रास्ता है। अगर दूसरा रास्ता होने से तो उतना तकलीफ नहीं होता था। एक ही रास्ता के चलते अभी हमारे ठप हो रहा है उन लोगों का। हम लोग भी सोच रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू करूँ। बोल के आप लोगों ने पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात नहीं बताया था? नहीं, हम लोग ने कई बार हम लोग ने रिटर्न में भी दिया है, कई बार हम लोग ने यहाँ का जिला और पंचायत सभी मिलकर इसको इन्फॉर्म किया था। इन्फॉर्म सिर्फ नहीं, हम रिक्वेस्ट भी किया था उनको कि हमारा जितना भी अभी पुल एक ही बचा हुआ है, इसका भी हम भरोसा नहीं है। इसी के चलते हम लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि जितना भी जैसे हमारा संकलांग में एक बैम्बू ब्रिज है और ये फिदांग का एक बैम्बू ब्रिज है, अब इसको भी जल्दी रिपेयर करने के लिए हम लोग ने डीसी को रिक्वेस्ट किया था, लेकिन डीसी साहब ने अभी तक इनिशिएटिव नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने डीसी साहब ने बोला कि ये ब्रिज ठीक है, आप टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। अभी देखो, अगर ये चला जाएगा यहाँ पर, ये बैम्बू ब्रिज को हम लोग कैसे रिस्टोर कर पाएगा, क्योंकि वाटर वॉल्यूम तो हाई है। अभी कुछ भी हो सकता है, इस टाइम में तो इसको भी रिपेयर भी नहीं कर सकता, और हम यहाँ के लोगों को इस बैम्बू ब्रिज से हम लोग निकाल भी नहीं सकता है। अभी इस सिचुएशन में पहुंच गए कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए फिर भी हम आज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को, जितना सके इसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने के लिए हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आर्मी का गाड़ी व्हीकल यही से जाता है? आर्मी का जो भी छोटा हो बड़ा हो जो भी गाड़ी है यहीं से जाता है। अभी ये भी टूट रहा है, क्योंकि डिफेंस का तो हमारा बॉर्डर एरिया है। अभी बॉर्डर एरिया में अगर बॉर्डर एरिया का हालत ऐसा होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेगा। थैंक यू। अभी का रोड का अभी ये ब्रिज का कंडीशन ऐसा है कि अभी हम लोग कुछ बता नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक ये पानी का लेवल डाउन नहीं होगा तब तक हम लोग बता नहीं सकता है। क्योंकि नीचे से अभी जो अबॉटमेंट है वो नीचे से पूरा वो पानी के चलते पूरा उसको अबॉटमेंट को डैमेज हुआ है। इसके चलते अभी तो हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये हमारा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का एक ही लाइफ लाइन है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट मतलब हमारा लाचन लाचुंग, चुंगथांग और ये जोंगू का जितना भी इसी रास्ते से चल रहा था, क्योंकि पहला तो हमारा संकलांग में भी था। वो संकलांग का भी ब्रिज टूटने के चलते अभी हमारा पास एक ही ऑप्शन है, एक ही ये रास्ता है, एक ही ब्रिज है। अभी ये भी टूट जाएगा तो हमारे लिए कोई डिफेंस के लिए भी तकलीफ की बात है, क्योंकि डिफेंस भी चल नहीं पा रहा है। अभी ये भी टूट जाने के चाइना बॉर्डर तक यही, चाइना का बॉर्डर जाने रास्ता यही एक रास्ता है। अभी अल्टरनेटिव रास्ता भी नहीं है। इसलिए अभी हम लोग जितना सके हमें अभी सुबह हम लोग आके यहाँ पर कमांडेंट साहब भी था, उनको भी हम लोग ने बोला इसको जितना सके आप लोग रिस्टोर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हमारा ऊपर लाचन लाचुंग में हमारा टूरिस्ट भी फंसा हुआ है और ये एक ही रास्ता है, ये एक ही ब्रिज है जिससे हम लोग लाचन लाचुंग तक कनेक्ट करता है, जंगू से लेकर लाचन लाचुंग तक कनेक्ट करता है, बॉर्डर एरिया तक कनेक्ट करता है। इसीलिए हम लोग सुबह आके उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि जितना सके इसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने के लिए हम लोग ने बोला। पब्लिक इफेक्ट होगा इधर? अभी मान लीजिए आप लोग आर्मी से जोड़कर सब करके तो कम से कम हमारा 50-60 हज़ार तो होंगी, हमारा 50-60 हज़ार तो होंगे। अभी टूरिस्ट फंसे हैं, उन लोगों को तो आना यही रोड से होगा? ये एक ही यही रास्ता से आना होगा टूरिस्ट लोगों को। वो भी हमारा टूरिस्ट लोग फंसा हुआ है, उनको भी हम लोग हमारा जितने भी लाचन लाचुंग का हमारा पिपन साहब लोग है और चुंगथांग का जितना भी जिला पंचायत है और गांव का जितना भी लोग है और ट्राइबल्स का है, वो लोग पार्टी का कार्यकर्ता है, वो लोग सपोर्ट कर रहा है। उनको जितना सके उन लोगों को ट्रांसपोर्ट करके निकालना है, क्योंकि उन लोगों को वहाँ ज़्यादा रखने से भी उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग कल रात भी मेरा यहाँ पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का हमारा इंचार्ज है, इन्होंने भी कल रात भी हमारा टूरिस्ट को रिस्टोर वहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर नया बाजार में उन लोगों को भी, क्योंकि अभी पूरा रास्ते के चलते एक ही रास्ता है। अगर दूसरा रास्ता होने से तो उतना तकलीफ नहीं होता था। एक ही रास्ता के चलते अभी
हमारे ठप हो रहा है उन लोगों का। हम लोग भी सोच रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू करूँ। बोल के आप लोगों ने पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात नहीं बताया था? नहीं, हम लोग ने कई बार हम लोग ने रिटर्न में भी दिया है, कई बार हम लोग ने यहाँ का जिला और पंचायत सभी मिलकर इसको इन्फॉर्म किया था। इन्फॉर्म सिर्फ नहीं, हम रिक्वेस्ट भी किया था उनको कि हमारा जितना भी अभी पुल एक ही बचा हुआ है, इसका भी हम भरोसा नहीं है। इसी के चलते हम लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि जितना भी, जैसे हमारा संकलांग में एक बैम्बू ब्रिज है और ये फिदांग का एक बैम्बू ब्रिज है, अब इसको भी जल्दी रिपेयर करने के लिए हम लोग ने डीसी को रिक्वेस्ट किया था, लेकिन डीसी साहब ने अभी तक इनिशिएटिव नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने डीसी साहब ने बोला कि ये ब्रिज ठीक है, अब टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। अभी देखो, अगर ये चला जाएगा यहाँ पर, ये बैम्बू ब्रिज को हम लोग कैसे रिस्टोर कर पाएगा, क्योंकि वाटर वॉल्यूम तो हाई है, अभी कुछ भी हो सकता है। इस टाइम में तो इसको भी रिपेयर भी नहीं कर सकता, और हम यहाँ के लोगों को इस बैम्बू ब्रिज से हम लोग निकाल भी नहीं सकता है। अभी इस सिचुएशन में पहुंच गए कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए फिर भी हम आज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को, जितना सके इसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने के लिए हम रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आर्मी का गाड़ी व्हीकल यही से जाता है? आर्मी का जो भी छोटा हो बड़ा हो, जो भी गाड़ी है यहीं से जाता है। अभी ये भी टूट रहा है, क्योंकि डिफेंस का तो हमारा बॉर्डर एरिया है। अभी बॉर्डर एरिया में अगर बॉर्डर एरिया का हालत ऐसा होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेगा। थैंक यू। अपन ये जो वेदर अब क्या होगा, जैसे अभी कल तो काफ़ी उधर टीम लगा पड़ा, डिस्ट्रिक्ट साहब मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें पुलिस प्रशासन है, सब मिलके, और ये रेस्क्यू टीम तो काम अभी चालू है। अब टोटल 10 में 2 तो अब मिल गया, तो 8 अभी मिसिंग है। 8 में 6 उड़ीसा का था, मतलब ऐसे रिपोर्ट मिल रहा है। और ये सीधे मतलब जो गाड़ी उस दिन एक्सीडेंट हुआ, वो सीधे जाके वो तीस्ता नदी में मतलब वो सीधा मतलब उसी अंडर में मतलब चले गया था। तो अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी सब मतलब एक्टिवली वो लोग अभी मतलब अभी जो प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू टीम भी लगे पड़ा है। अभी कोई डिटेल रिपोर्ट नहीं मिल रहा है उधर से। तो तीस्ता नदी का जलस्तर तो बड़ा है, अभी वाटर लेवल तो इंक्रीज हुआ है। अभी इसमें भी कुछ बता नहीं सकता है। अभी ऊपर में जब फिर बारिश होने लगेगा तो फिर वाटर लेवल फिर बढ़ जाता है। वो ऐसे चल रहा है, काफी हफ्ता 10 दिन से ऐसे चल रहा है, और बढ़ने का संभव है, घटने का तो थोड़ा कम चांसेस है। 2-3 महीना तो और बढ़ेगा। और लैंडस्लाइड भी हुआ है? लैंडस्लाइड काफी हुआ है। ये लैंडस्लाइड ऑलरेडी लैंडस्लाइड एरिया है। जब रेनी सीजन में तो काफी लैंडस्लाइड होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी इतना ज्यादा डैमेज होता है। ये सिक्किम का जो टोपोग्राफी, सिक्किम का जो सिचुएशन, ये अलग से होता है। इधर सबसे ज्यादा डैमेज होता ही रहता है। थैंक यू। हम लोग सिक्किम टूरिज्म डिपार्टमेंट से, और हम लोग जो वो एक्सीडेंट जो मिसिंग हुआ था टूरिस्ट लोग, वो रेस्क्यू के लिए जा रहा था। रोड भी यहाँ पे बंद है। जो ये जगह है लोकेशन, इसको ब्लैंक होला बोलता है जो लोकल पीपल से जानने में। तो आगे भी ये जो ठेंग बोलता है, यहाँ से आपका 7-8 किलोमीटर है, वहाँ पर भी पूरा रोड ही वो स्लाइड होके गया है। तो वो भी टाइम लगेगा। आज शायद ये नहीं खुलेगा सही। तो आज वहाँ रेस्क्यू हो पाएगा? आज जो वहाँ पे टीम है वो लोग रेस्क्यू कर रहा है। वो SSD में और NDRF के साथ और हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट और टीम मिलके वो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। और हम लोग जो बैकअप में था, जो हमारा टीम था, शायद आज हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे। आज ये टाइम लगेगा ये रोड खोलने में। कितनी जगह ऐसा लैंडस्लाइड हुआ? यहाँ से बड़ा बड़ा जो है वो तो 2-3 जगह है, और छोटा छोटा तो बहुत ही है। तो रेस्क्यू में तो बहुत प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम तो होगा, क्योंकि इक्विपमेंट आधा ऊपर है आधा इधर है। तो जो भी है उसके यूटिलाइज करके वो लोग रेस्क्यू तक दे रहा है। पूरा फुल ऑपरेशन तो चल रहा है। फिर भी जो हम लोग बैकअप था, अब हम लोग भी देखेंगे। अभी हम लोग भी फंस गए यहाँ पे।
गाड़ी के लिए तो कोई उपाय नहीं? नहीं है, गाड़ी का उपाय नहीं है, गाड़ी का उपाय नहीं है सर। अच्छा, जो टूरिस्ट उस एक्सीडेंट में मुंशी थन शुभम्बू में मिसिंग हुआ था, मिसिंग नहीं, जो एक्सीडेंट में नदी में गिरा था, तो उसमें से 2 को तो जिंदा निकाला 29 के रात को ही रेस्क्यू टीम ने। बाकी जो 9 आदमी है उसमें से इंक्लूडिंग ड्राइवर जो सिक्किम का था, तो कल दिन भर हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और ये आईटीबीपी सारे लोगों ने कोशिश किया, लेकिन नदी के अंदर जो गाड़ी चली गई थी तो वो गाड़ी निकल नहीं पाया, गाड़ी नज़र भी नहीं आ रहा है, एक छोटा सा उसका पोर्शन नज़र आ रहा है। उसको खींचने के, हिलाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन डेब्रिस की जो सैंड और जो डेब्रिस होता है उससे दब करके वो निकल नहीं रहा है। तो वहाँ पर हम लोगों ने बॉडी भी कुछ नहीं मिला। कल दिन भर इसी तरह रहा और शाम को 6 बजे तक कोशिश किया। आफ्टरनून को एनडीआरएफ भी आए थे, तो उन्होंने भी अपना एक्सपर्टाइज लगा कर देखा, स्किल लगा करके, लेकिन कुछ नहीं हो सका, कोई हमें बॉडी वगैरह कुछ नहीं मिला। आज हाँ, कल रात भर बारिश हुआ था, कहीं पर ऊपर जो लाचेन, लाचुंग और ऊपर जो हिमालय के इस एरिया में कहीं क्लाउड बस्ट हुआ है, तो उसकी वजह से नदी का दोनों तरफ, लाचेन-छू और लाचुंग-छू, जो 2 नदी मिलकर चुंगथंग में मिलता है, उससे टिस्टा बनता है। तो वो दोनों तरफ का नदी बढ़ने की वजह से नदी जो टिस्टा, वो दोनों तरफ से जो लेवल है तकरीबन 4 मीटर उसका राइज हुआ है, वाटर लेवल नॉर्मल से। इसकी वजह से हमारा रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचा पैदल जा करके, क्योंकि बाढ़ आया था, फिर बारिश की वजह से रास्ता तो सब टूटा पड़ा है अभी। तो रेस्क्यू टीम पहुँचा, उन्होंने कोशिश किया, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि रिवर ने अपना पूरा कोर्स चेंज कर लिया है। कि वहाँ जो कल थोड़ा सा हम लोगों को ज़मीन दिख रहा था, वो पूरा पानी ही पानी है, और वो भी पूरा बालू से दब चुका है। तो जो अभी जो रास्ता टूटा है, आपको सिपगियर से लेके चुंगथांग तक, वो कितनी जगह पर टूटा है और इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कैसा एनवर हो रहा है? हाँ, टूटा तो काफ़ी जगह है, और हमें आशा है होपफुली कल शाम तक खुल जाएगा वो टुंग तक, ये जो संकलंग से टुंग तक कल शाम तक शायद खोलने का चांसेस है। अभी देख रहा है, क्योंकि डीसी साहब वहीं स्पॉट में है। कल डीसी और मैं दोनों था वहाँ पर, जो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन हम दोनों ने साथ मिलकर सुपरवाइज किया, जितना भी हमारा इंस्ट्रक्शन देना था दिया। फिर हमने वहाँ का अभी पूरा ऑन द स्पॉट इंचार्ज एसडीएम एंड देन एसडीपीओ चुंगथंग एडिशनल एसपी है, तो उनको जिम्मा दिया है कि कंटिन्यू सर्च रखना है, और कर भी रहा है। तो उसके साथ हमारे पुलिस की तरफ से अपना एसएचओ है, इंस्पेक्टर रैंक का है 2, और ऊपर का 1, 3 इंस्पेक्टर वहाँ पर लगा है अपना टीम के साथ। तो ये टूरिस्ट कहाँ कहाँ के? ये टूरिस्ट है, उड़ीसा का 6 है, त्रिपुरा का 2 है, और यूपी का 2 है, टोटल 10 है। और ड्राइवर जो है वो सिक्किम का है, ये मंगन जिला का है। टोटल 11 लोग थे। अभी जो रास्ता टूटा है, इसकी वजह से लाचेन और लाचुंग में बहुत सारे टूरिस्ट फंसे हुए, ऐसा खबर भी मिल रहा है। तो कितना टूरिस्ट लाचेन और लाचुंग में भी फंसा हुआ है, और उन लोगों को रेस्क्यू भी लेके प्रोसेस आप लोग स्टार्ट करेंगे? अभी डीसी साहब और मेरा बात हुआ था, तो रास्ता लाचुंग से चुंगथंग तक तो थोड़ा बहुत खुल चुका है, और छोटा गाड़ी आ जा सकती है, लेकिन लाचेन और चुंगथंग का रास्ता अभी खुलने का चांसेस नहीं है। अभी जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है उसके हिसाब से लाचुंग में तकरीबन 1350 समथिंग टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट है, और कुछ फिर फॉरेनर्स भी है। उसी तरह लाचेन में 112 डोमेस्टिक टूरिस्ट है, और उसमें से 4 फॉरेनर्स वहाँ पर अभी स्ट्रैंडेड है। तो उनको जब यहाँ टुंग से रास्ता खुल जाएगा, तो हम उसको फिर वापस भेजना शुरू करेंगे गैंगटॉक की तरह। कंटिन्यू जो बारिश हो रही है, इससे थोड़ा प्रॉब्लम, कब से बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है? बारिश तो यहाँ होता ही रहता है, एवरी इवनिंग आफ्टरनून या नॉर्थ मंगन डिस्ट्रिक्ट में बारिश होता ही रहता है। इसीलिए हमने स्पेशली जितना भी ड्राइवर लोगों से ऑर्डर भी लिख कर रखा है कि 2 बजे के बाद यू कैन नॉट क्रॉस दिस संकलंग, एंड फ्रॉम 3 PM, मतलब 1500 आवर्स के बाद फिर इधर टुंग से इधर जो गाड़ी था हमने सब स्टॉप किया हुआ था। यही वजह था कि आफ्टरनून यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, फिर नाइट में वहाँ पर एक्सेस भी बहुत कठिन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रीच।
सो इसकी वजह से हमने वो रेस्ट्रिक्शन किया था। लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ ड्राइवर ये फॉलो नहीं करता है, आ जाता है। अब कितना हमने चालान भी किया। तो ये गाड़ी भी ऐसा था कि हमने वहाँ आफ्टर 4 से कम 6 बजे तक का जो चुंगथंग टू लाचेन का रोड था, उनको बोला था, सारे को इन्फॉर्मेशन थे कि आप लोग हो सके तो 4 और 6 बजे तक वहाँ से निकल जाना। उसके बाद अपना जो है उसको अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ पर रास्ता कभी नहीं हम श्योर कर सकते हैं कि वो सेफ है। लेकिन ड्राइवर लोग ऐसा ही निकल जाता है। उसमें हम ड्राइवर को भी उसको नहीं बोल सकते, कि जो टूरिस्ट लोग होते हैं व्हेन दे आर कमिंग बैक, दे समटाइम स्टॉप इन रूट, जो रुकता है, देन दे टेक पिक्चर्स, कुछ कुछ जो फॉल्स होता है, इस तरह से देरी हो जाता है। तो ऐसा ही होता है हमेशा। 2-3 गाड़ी तो हमेशा लेट ही आता है वहाँ पर। सर इतना लोग मिसिंग है, क्या आशा है कि लोग बॉडी अब रिकवर होगा? जब तक सांस है आस तो रखना चाहिए। और हमें भी अच्छा लगेगा कि कहीं जितना भी उसका परिवार वाला है, उसका दिल में क्या बीत रहा है, हम उसको आई कैन इमेजिन। और हमारा कोशिश ये है, बात किया है सारे लोगों से, कि कोशिश करें, सिंसियर एफर्ट करें। अगर जिंदा नहीं मिला तो कम से कम उसका बॉडी ही मिल जाए, ताकि जो रिलेटिव से वो तसल्ली हो सके कि हमारा आदमी यहाँ पर जा करके मेट विद दिस इंसिडेंट बोल के, कि डेड बॉडी देखने से उसको सुकून मिल जाता है। हमारा कोशिश है निकालने का। अब देखें क्या होता है।